یہ ہے انڈونیشیا، دنیا کے سب سے خوبصورت اور کمپلیکیٹڈ ملکوں میں سے ایک۔ یہاں آگ اگلتے والکینوز ہیں، گھنے جنگل ہیں اور خوبصورت بیچز ہیں۔ یہ ایک ایسا انوکھا ملک ہے جہاں 27 کروڑ سے زیادہ لوگ 17,000 سے زیادہ آئلینڈز پر رہتے ہیں۔ جی ہاں، 17,000 آئلینڈز۔ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا آئلینڈ کنٹری ہے جو 5,000 کلومیٹر سے زیادہ کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ 3 ٹائم زونز میں بھی پھیلا ہوا ہے، ویسٹ میں سماٹرا سے لے کر ایسٹ میں پیپیوا تک۔ یہ دنیا کا چوتھا سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے، the largest Muslim majority country and one of the most ethnically and linguistically diverse places on earth۔ لیکن اس ساری خوبصورتی کے پیچھے ایک راز چھپا ہے۔ 17,000 جزیروں پر پھیلا یہ ملک آخر بنا کیسے؟ ایک کنٹری بننے سے پہلے یہاں کس کی حکومت تھی؟ اور یہ اتنے زیادہ اور اتنے ڈیفرنٹ آئلینڈز ایک ہی ملک میں اکٹھے کیسے ہوئے؟ اور سب سے اہم سوال، آپ ایسے کنٹری پر حکومت کیسے کر سکتے ہیں جو اتنے سمندروں میں پھیلا ہوا ہو؟ انڈونیشیا کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا ہوگا تاریخ میں، کیونکہ یہ صرف ایک ملک نہیں ہے بلکہ ماڈرن ہسٹری کے سب سے عجیب ایکسپیریمنٹس میں سے ایک ہے، جس میں ہزاروں آئلینڈز، کلچرز اور والکینوز کو ایک ہی ملک میں اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ سمجھ جائیں گے کہ انڈونیشیا ابھی تک یونائٹڈ کیسے ہے اور فیوچر میں کیسے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ آج سے کئی 100 سال پہلے یہ سارے آئلینڈز ایشیا کی سب سے امیر اور پاورفل کنگڈمز کا گڑھ تھے۔ ہزاروں سال سے لوگ یہاں پر کمیونٹیز کی شکل میں رہ رہے تھے۔ وہ یہاں کھیتی باڑی کرتے تھے اور سمندر کے ذریعے ٹریڈ کرتے تھے۔ یہ آئلینڈز بھارت اور چین، 2 پاورفل سیویلائزیشنز کے بیچ میں تھے، اور اسی لیے دونوں ملکوں کے تاجر یہاں سے گزرتے تھے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ سونا، آئیڈیاز اور ایون ریلیجیس آئیڈیالوجیز بھی شیئر کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ یہ جزیرے اتنے اہم ہو گئے کہ یہاں بڑی سلطنتیں قائم ہونا شروع ہو گئی۔ انہی میں سے ایک تھی سماٹرا میں موجود سری وجایا کنگڈم۔ 7ویں صدی کے آس پاس یہ کنگڈم ایک پاورفل ٹریڈنگ سینٹر بن گئی جو نہ صرف سی روٹس کنٹرول کرتی تھی بلکہ یہاں سے گزرنے والی شپس سے ٹیکس بھی لیتی تھی۔ یہ کنگڈم بدھزم کا ہب بن گئی اور ساری دنیا سے اسکالرز یہاں آنے لگے۔ اس کے بعد پھر 13 اور 14 سینچری میں جاوا میں مجاپاہت ایمپائر ابھری۔ یہ ایمپائر بہت سارے آئلینڈز تک پھیلی ہوئی تھی۔ مجاپاہت اپنے آرٹ، کنسٹرکشن اور گڈ گورننس کے لیے جانی جاتی تھی۔ یہاں پر ہندوازم فالو ہوتا تھا اور یہ اس وقت کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی سب سے پاورفل ایمپائر تھی۔ لیکن کوئی بھی امپائر ہمیشہ نہیں رہتی۔ جیسے جیسے ٹریڈ بڑھتا گیا، نئی پاورز ابھرنے لگی اور یہ کنگڈمز کمزور ہونے لگی۔ یہاں کے لوکل لیڈرز نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور پھر یہاں پر آمد ہوئی اسلام کی۔ 13ویں صدی کے آس پاس یہاں پر ٹریڈ کے ذریعے اسلام پھیلنے لگا۔ مسلمان ملکوں سے آنے والے بزنس مین کے اچھے برتاؤ سے متاثر ہو کر یہاں کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ لیکن ابھی یہ حالت سنبھل ہی رہی تھی کہ سمندر کے اس پار سے کچھ لوگ آ رہے تھے جو یہاں آ کر سب کچھ بدلنے والے تھے۔ کچھ سمندری جہاز ان آئلینڈز کی طرف آ رہے تھے اور وہ یہاں ٹریڈ کرنے نہیں بلکہ حکومت کرنے آ رہے تھے۔ 15ویں صدی کے شروع میں کچھ سمندری جہاز ان آئلینڈز پر اترے۔ یہ لوگ دنیا کی دوسری طرف سے آئے تھے۔ یہ الگ الگ زبانیں بولتے تھے، ان کے اپنے جھنڈے تھے اور ان کے پاس طاقتور ہتھیار بھی تھے۔ یہ پورچوگیز تھے اور وہ ایک بہت قیمتی چیز کی تلاش میں تھے، اور وہ چیز تھی مسالے۔ اس وقت یورپ میں لونگ، جائفل اور کالی مرچ سونے جتنی قیمتی سمجھی جاتی تھی، اور انڈونیشیا کے ملوکو آئلینڈز میں یہ مسالے بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے۔ یہ آئلینڈ اسپائس آئلینڈز کے نام سے مشہور ہو گئے اور ہر کوئی ان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ پورچوگیز کے کچھ ہی عرصے بعد ڈچ بھی یہاں پر آ گئے، اور وہ بھی یہاں صرف ٹریڈ کے لیے نہیں بلکہ حکومت کے لیے آئے تھے۔ 1602 میں ڈچ نے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی جو اس وقت دنیا کی سب سے پہلی اور بڑی انٹرنیشنل کمپنی تھی۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان اسپائسز کے ٹریڈ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ڈچ نے وہاں پر قلعے بنائے اور لوکل لیڈرز کے ساتھ ڈیلز کی، اور جہاں ڈیل کام نہیں کی وہاں پر اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ آہستہ آہستہ ڈچ نے پورچوگیز کو یہاں سے نکال دیا اور ان آئلینڈز پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کی ساری لوکل کنگڈمز یا تو ختم ہو گئی یا پھر انہوں نے ڈچ کی حکومت مان لی۔ لیکن ڈچ کا گول صرف یہ مسالے نہیں تھا، وہ تو یہاں کی زمین، لوگوں اور دوسرے ریسورسز پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور یہیں سے شروعات ہوئی ڈچ کی 300 سالہ حکومت کی۔ ڈچ نے یہاں بٹاویا جیسا شہر بنایا جسے آج جکارتا کہتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہاں شوگر، کافی اور ٹوبیکو کی فارمنگ شروع کی اور انڈونیشین سے زبردستی کام لینے لگے۔ ڈچ نے یہاں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، خوب ٹیکس اکٹھا کیا، اور جب کوئی پروٹیسٹ کی کوشش کرتا تو اسے بھرپور طاقت سے کچل دیا جاتا۔ اس سب کے باوجود بہت سے انڈونیشینز نے ہمت نہیں ہاری اور وہ آزادی کا خواب دیکھتے رہے، اور 1900s میں یہ خواب بالآخر ایک موومنٹ کی شکل اختیار کر گیا۔ ڈچ کو لگ رہا تھا کہ سب کچھ ان کے
उनके कंट्रोल में है, लेकिन एक नया तूफान आ रहा था, एक ऐसी वर्ल्ड वॉर जो पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाली थी। ये 1940 की दिहाई थी और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी थी। एक नई ताकत जापान इंडोनेशिया की जानिब तेजी से बढ़ रही थी। 1942 तक जापान ने इन आइलैंड्स पर हमला करके यहाँ कब्जा कर लिया। 300 साल डच के कब्जे में रहने के बाद इंडोनेशिया अब जापान के कंट्रोल में चला गया। शुरू में तो इंडोनेशियंस को लगा कि शायद ये उनके लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि जापान ने वादा किया था कि वो एशिया को यूरोपियन से आजादी दिलवाएगा। लेकिन बहुत जल्द हालात बदलने लगे। जापानी हुकूमत के दौर में जिंदगी मुश्किल होना शुरू हो गई। लोगों से जबरदस्ती काम लिया जाता और उन्हें बदले में बस थोड़ा सा खाना दिया जाता। इंडोनेशिया के लोगों में अब आजादी की आग मजीद भड़कना शुरू हो चुकी थी। जापान ने लोकल इंडोनेशियंस को अपने फायदे के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू की, लेकिन यही ट्रेनिंग आगे चलकर इंडोनेशियंस के लिए फायदेमंद साबित होने वाली थी। 1945 में सब कुछ बदल गया, क्योंकि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब फेंक दिए और जापान ने हार मान ली। जैसे ही जापानी फौज वापस जाना शुरू हुई, इंडोनेशिया के लीडर्स को एक मौका नजर आया। 17 अगस्त 1945 को जापान के हथियार डालने के सिर्फ 2 दिन बाद सुकार्नो और मोहम्मद हत्ता, इंडोनेशिया के 2 बड़े लीडर्स ने आजादी का ऐलान कर दिया। इट वॉज अ ब्रेव मूव, लेकिन डच ने इस आजादी को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जापान के जाने के बाद वो फिर से यहाँ का कंट्रोल लेना चाहते थे। इसके बाद 4 साल तक यहाँ जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसे इंडोनेशियन नेशनल रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस जंग में इंडोनेशियंस ने हथियारों और डिप्लोमेसी के साथ जबरदस्त तरीके से रेजिस्ट किया और दोबारा गुलाम बनने से इनकार कर दिया। आखिरकार 1949 में आलमी दबाव के बाद डच ने हार मान ली और यूं इंडोनेशिया आजाद हो गया। मगर आजादी हासिल करना तो शुरुआत थी। उन्हें अब एक ऐसा मुल्क चलाना था जिसमें 17,000 से ज्यादा जजीरे, बेशुमार कौमें और दर्जनों जुबानें बोली जाती थी। तो इंडोनेशियंस ने आजादी तो हासिल कर ली थी, लेकिन असल मुश्किल काम तो अभी बाकी था, और वो था इतने सारे लोगों को इकट्ठा रखना। ये कोई एक मुल्क या चंद सूबे नहीं थे। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा पजल था, जिसके 17,000 से ज्यादा आइलैंड्स 5,000 किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए थे। इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स बहुत बड़े हैं और वो लोगों से भरे हुए हैं, जैसे जावा आइलैंड, जिसमें इंडोनेशिया की आधी आबादी मतलब तकरीबन 14 करोड़ लोग रहते हैं। इसी तरह सुमाट्रा, सुलावेसी और कलिमंतन भी बड़े आइलैंड्स हैं, जिनके अपने कल्चर्स हैं। इसी तरह कई हजार छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और हर किसी का अपना कल्चर, जबान और आइडेंटिटी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडोनेशिया कितना डाइवर्स है, तो जरा ये स्टैट्स देखें। यहाँ 700 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं, 1300 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। यहाँ पर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो फिर इतने डिफरेंट लोगों को एक ही मुल्क में कैसे जोड़ा गया है? इसी का जवाब ढूंढते हुए इंडोनेशिया के लीडर्स के जहन में एक आइडिया आया। उन्होंने एक नेशनल स्लोगन बनाया, भिन्नेका तुंगल आइका, जिसका मतलब था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब हम हैं तो एक दूसरे से डिफरेंट, बट फिर भी रहेंगे इकट्ठे। इन लीडर्स ने नेशनल लैंग्वेज भी सोच समझ कर चुनी। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबान जावानीज के बजाय भाषा इंडोनेशिया को नेशनल लैंग्वेज बनाया, क्योंकि वो एक आसान जबान थी और हर कोई आसानी से वो सीख भी सकता था। इसका एक फायदा ये भी हुआ कि किसी एक ग्रुप को ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे बजाय दूसरे की जबान को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया है। इसी तरह उन्होंने जकार्ता को कैपिटल बनाया और फिर इन सब आइलैंड्स में सड़कें, स्कूल और सी पोर्ट्स का एक जाल बिछा दिया, ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकें। लेकिन इस सब के बावजूद सबको इकट्ठा रखना इतना आसान नहीं था। कुछ इलाके अभी भी अलग होना चाहते थे। सुमाट्रा में मौजूद आचेह आइलैंड ने आजाद होने की कोशिश की। पैपुआ भी बहुत अरसे से आजादी मांगता आया है। ईस्ट तिमोर ने तो अलग होने के लिए वॉर भी लड़ी और फाइनली 2002 में एक सेपरेट कंट्री भी बन गया। इंडोनेशिया ने कई सालों से यूनाइटेड रहने की कोशिश की है और गो के उसे कामयाबी भी मिली है, लेकिन पूरे मुल्क को इकट्ठा रखने की ये स्ट्रगल आज भी जारी है। 17,000 आइलैंड्स वाले मुल्क को चलाना ऐसा ही है जैसे किसी तूफान में कश्ती चलाना हो, क्योंकि हर कश्ती अपनी अलग डायरेक्शन में जा रही होती है। इसके लिए बहुत मेहनत और सब्र चाहिए, क्योंकि इंडोनेशिया को सिर्फ पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे डेंजरस जियोलॉजिकल जोन्स पर भी वाक़ है। इंडोनेशिया असल में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर वाक़ है। ये एक बहुत बड़ी पट्टी है जिसमें बहुत से वॉल्केनोस हैं और बहुत ज्यादा जलजले भी आते हैं, और इसीलिए इंडोनेशिया में 130 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोस भी हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। और यहाँ पर अर्थक्वेक भी सबसे ज्यादा आते हैं, और फिर सुनामी, फ्लड्स और लैंडस्लाइडिंग भी बहुत होती है। दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर्स भी यहाँ हो चुके हैं। 1883 में कराकटुआ आइलैंड पर मौजूद वॉल्केनो इतनी जोर से फटा कि उसकी आवाज 4800 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस धमाके ने सुनामी को ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से 36,000 लोग मारे गए और पूरे के पूरे गांव मिट गए। इसी तरह 2004 में सुमाट्रा की कोस्ट के पास 9.1 शिद्दत का जलजला आया, जिसकी वजह से एक बार फिर सुनामी ट्रिगर
ट्रिगर हो गया। इस सुनामी ने इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और दूसरे कंट्रीज में 2,30,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट डिजास्टर माना जाता है। हर साल ये सैलाब हजारों लोगों को अपने घरों से बेदखल कर देते हैं। एक और प्रॉब्लम ये भी है कि इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि लोग धड़ाधड़ ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों पर तो ये शहर 25 सेंटीमीटर तक डूबता जा रहा है। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू कैपिटल बनाने का फैसला किया है, जिसका नाम होगा नुसांट्रा और ये बोर्नियो आइलैंड पर होगा। इससे फिर डूबते हुए जकार्ता पर लोड कम होगा। मगर इन घने जंगलात में ये शहर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इस पर अरबों डॉलर्स का खर्चा होगा और इसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी होगी। सो नेचर इन इंडोनेशिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। वही वोल्केनोस जो खेतों की मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, वही अचानक फट भी सकते हैं। वही समुद्र जो इन आइलैंड्स को जोड़े हुए हैं, एकदम बिगड़ भी सकते हैं। और वही गर्म मॉनसून का मौसम जिसकी वजह से ये घने जंगल हैं, वो फ्लड्स की सूरत में सब कुछ डबो भी सकता है। इसीलिए इंडोनेशियंस के लिए ये नेचुरल कैलामिटीज उनकी आइडेंटिटी बन गई हैं। और फिर जब आप एक ऐसे मुल्क को संभाल रहे हो जो 17,000 जजीरों में बटा हुआ हो, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। ज्यादातर मुल्कों में सड़कें, हाईवेज या रेल के जरिए शहरों और देहात को जोड़ना आसान होता है, लेकिन इंडोनेशिया में बीच में हमेशा समुद्र आ जाता है। आप एक सूबे से दूसरे सूबे तक हाईवे नहीं बना सकते क्योंकि अक्सर उन प्रोविंसेस के बीच में समुद्र होता है। लेकिन इवन एक ही आइलैंड पर भी कंस्ट्रक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, पैपुआ में घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां सिर्फ एयरप्लेन या फिर घंटों ट्रैकिंग करके ही जाया जा सकता है और कई जगहों पर तो रोड्स हैं ही नहीं। इसी तरह इंडोनेशिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले आइलैंड जावा में इतनी ट्रैफिक होती है कि कई दफा सिर्फ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में भी 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। और फिर कम्युनिकेशन के भी इश्यूज हैं। इंडोनेशिया के बहुत से आइलैंड्स में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क्स की बहुत लिमिटेड एक्सेस है और इसी वजह से वहाँ गवर्नेंस के बहुत इश्यूज हैं। कुछ आइलैंड्स में तो डॉक्टर पूरे महीने में सिर्फ एक बार आता है और कई जगहों पर तो बच्चे बगैर बिजली वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। इंडोनेशिया की 73% आबादी को इंटरनेट की एक्सेस है, जबकि बाकी तकरीबन 7 करोड़ लोग आज भी बगैर इंटरनेट के गुजारा कर रहे हैं। ये चीजें बड़े शहरों और गाँव में एक जबरदस्त फर्क पैदा करती हैं। बड़े शहर जैसे जकार्ता, सुराबाया और मेडैन वेल कनेक्टेड और डेवलप्ड हैं, जबकि नियास, फ्लोरेस और बुरू जैसे आइलैंड्स को देखकर लगता है कि जैसे गवर्नमेंट ने इन्हें बिल्कुल भुला दिया है। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने ये फर्क कम करने की बहुत कोशिश की है। उसने इन इलाकों में पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और हाईवेज बनाने की कोशिश की है और इवन इंटरनेट को छोटे इलाकों तक पहुंचाने के लिए भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे हैं। लेकिन इतने ज्यादा आइलैंड्स तक ये फैसिलिटीज पहुंचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए जब लोग ये कहते हैं कि इंडोनेशिया को चलाना बहुत मुश्किल काम है, तो इसकी वजह सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि ये ऐसी अजीब और मुश्किल ज्योग्राफी भी है। और फिर ऊपर से इंडोनेशिया में इतने कल्चर्स, लैंग्वेजेस और आइडेंटिटीज रहती हैं कि ये दुनिया का छोटा वर्जन लगता है। इंडोनेशिया में 1300 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा ग्रुप जावानीज है, जो कि पूरे इंडोनेशिया की आबादी का 40% है। इसी तरह और भी बहुत सी एथनिसिटीज हैं, जैसे सुडानीज, मदुरीज, बैलिनीज, बाटक, दायक और बुजिज वगैरह। और हर ग्रुप का अपना कल्चर, म्यूजिक, खाना और लैंग्वेज है। इंडोनेशिया 700 से ज्यादा लोकल जबानों को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। इतनी ज्यादा जबानें शायद ही किसी मुल्क में हो। अब जैसे सुलावेसी में जो लोग रहते हैं वो घर पर कोई और जबान बोलते हैं, बाहर मार्केट में कोई और जबान और फिर स्कूल में कोई और जबान। तो जब किसी कंट्री में इतनी ज्यादा जबानें बोली जाती हों तो उसे फिर आप इकट्ठा कैसे रखते हो? इसका जवाब है भाषा इंडोनेशिया। 1945 में आजादी हासिल करने के बाद इंडोनेशिया ने भाषा इंडोनेशिया को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये बोलनी और सीखनी बहुत आसान थी। यही जबान आज इंडोनेशिया के हर स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेज और मीडिया में बोली जाती है और यही जबान इंडोनेशिया को इकट्ठा रखती है। लेकिन सिर्फ जबान एक करने से भी आपस के डिफरेंसेस दूर नहीं हुए। आज भी पैपुआ में बहुत से लोग खुद को बाकी इंडोनेशिया का हिस्सा नहीं समझते। उनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, जबानें अलग हैं और वो कई सालों से ऐसा महसूस करते हैं कि सरकार उन्हें इग्नोर करती है। यही कई मूवमेंट्स चल रही हैं और कभी कभी उनकी वजह से यहाँ वायलेंस भी होता है। इसी तरह नॉर्दर्न सुमाट्रा में आचे के प्रोविंस में बहुत साल तक लोगों ने लड़ाई लड़ी है और आज वहाँ उनकी इतनी पावर है कि वो ऑफिशियली शरिया लॉ पास कर सकते हैं। इसी तरह 1990s और 2000s में मलुकू और सेंट्रल सुलावेसी के एरियाज में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच बहुत लड़ाइयाँ हुई। इस सूरत हाल से निपटने के लिए इंडोनेशियन गवर्नमेंट पैंकैसिला नामी फिलोसफी को प्रमोट करती है। इस आइडियोलॉजी में 5 प्रिंसिपल्स हैं, जैसे खुदा पर यकीन, सोशल जस्टिस और यूनिटी, और ये हर स्कूल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इंडोनेशिया सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि 17,000 आइलैंड्स की एक पजल है। ये
वोल्केनोज और घने जंगलों की जमीन है। यहाँ कीमती मसाले हैं और कॉलोनियल दौर की यादें हैं। बाली के मंदिरों से लेकर जावा की मस्जिदों तक और पैपुआ के घने जंगलों से लेकर सुमाट्रा के बीचेस तक, इंडोनेशिया एक ऐसी पहेली है जिसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हार्ड वर्क ने इकट्ठे जोड़ कर रखा हुआ है। लेकिन इंडोनेशिया के लिए शायद फ्यूचर में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, स्पेशली जैसे जैसे उसके शहर डूब रहे हैं और फिर चाइना भी इन समुद्रों में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो इंडोनेशिया पर हुकूमत करना मुश्किल काम तो है, बट इट वाज नेवर मेंट टू बी इजी। ये मुल्क बनाने वालों को पता था कि इस ज्योग्राफी और इतने सारे कल्चर्स और रिलीजन्स के लोगों को इकट्ठा रखने के लिए सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं बल्कि विजन और यूनिटी की जरूरत है, और उन्होंने ये करके भी दिखाया है। और इसीलिए इंडोनेशिया दुनिया के सबसे यूनिक और फैसिनेटिंग कंट्रीज में से एक है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।